After completing lesson number 5, let us start lesson number 6, that is triangle. Meaning of defined triangle. Union of three line segment form a triangle. There are 9 elements. Of triangle. 3 sides, 3 angles, 3 vertices. In this lesson, in 10th standard, we are going to study triangle lesson, and topics included are, first of all, theorem. First one is Pythagoras theorem. Second one is converse of Pythagoras. Third one is fundamental. Theorem. Fourth one is area of similar triangle. And then numericals. And lastly, proof there. This last section has been given option. If you are preparing these 4 theorems, out of these 4, one will be there, and out of this proof, one will be there. So, from last 10 to 15 years, we are always preparing theorem for board exam. This year also, option we are giving, we are not going to prepare proof, that we are going to prepare theorem. Now let us start our first theorem, that is Pythagoras theorem. The main parts of theorem are given to prove and prove. Given in triangle ABC, angle B right angle, BM perpendicular to AC. To prove AB square plus BC square is equal to AC square. In proof, again we are going to write whatever is given in the question. Angle B is 90, BM perpendicular to AC. Let us draw the figure according to the given condition. Triangle ABC, angle B right angle, BM perpendicular to AC, according to the formula of proportionality, AB square is equal to AM multiplied by AC, BC square is equal to CM multiplied by AC. Point number 1, point number 2, adding 1 and 2.
एडिंग 1 एंड 2। इसका मतलब ऐसा है कि हम जब ये दोनों पॉइंट को ऐड करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई बाई ए सी प्लस सी एम मल्टीप्लाई बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन दिखाई दे रहा है, ए सी बाहर कॉमन निकाला, ए एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए सी। अब हम फिगर में देखेंगे ए एम प्लस सी एम, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको ए सी मिलेगा, तो उधर हमने ए सी लिखा, इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर is proved. With the help of logical thinking and argument, we have proved the theorem of Pythagoras. Second number theorem, converse of Pythagoras. कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ऐसा है, जो भी हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया उसका हमको इन्वर्स रिजल्ट देना है। तो जो प्रूव किया वो यहाँ पे गिवन में आएगा। इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, टू प्रूव एंगल बी इज राइट एंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये थियरम स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ सेंटेंस लिखने का है। लेट रे ई एक्स एंड रे ई वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर and by point plotting theorem we get triangle DEF in which angle E is right angle. Let us see with the help of the figure. Ray EX and ray EY. बाय पॉइंट प्लॉटिंग थियरम का मतलब ये जो दो रे ड्रॉ किए उसके अंदर हम एक पॉइंट इधर ड्रॉ प्लॉट करेंगे, दूसरा पॉइंट इधर प्लॉट करेंगे। उन दोनों को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ जो ट्राइंगल फॉर्म होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल। हमने यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख डाली। When two rays are perpendicular to each other, they form a right angle. And by point plotting theorem, हमने दो पॉइंट प्लॉट किए D और F, उसके हिसाब से ट्राइंगल DEF मिला। पॉइंट वन थ्योरम। अब जब ट्राइंगल DEF के अंदर एंगल ही राइट एंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला DF square is equal to DE square plus EF square. But हमको दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हिंट दी हुई है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम साइड में और एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ABC मार्किंग देंगे, D इक्वल AB, EF इक्वल BC। एंगल भी राइट एंगल है, हमको प्रूव करना है। तो यहाँ DE इक्वल AB है, तो इस DE के जगह AB स्क्वायर लिखेंगे, EF के जगह
BC स्क्वायर लिखेंगे एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको दिया है AC स्क्वायर, वो लिख देंगे। आगे DF स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो DF इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये हमने एक ट्राइंगल का इस्तेमाल करके इतना आंसर ले आए। नाउ इन बोथ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? AB इक्वल DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF। ये प्रूव किया अभी, ये गिवन था। जब दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो और एक ट्राइंगल का एंगल राइट एंगल हो, एंगल E इज राइट एंगल, तो हम बोल सकते हैं therefore एंगल B also right angle according to the similarity of triangle property. When two triangles are similar and they are in equal proportion, if each angle is right angle and another angle is also right angle, ये हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट थियरम में, फंडामेंटल थियरम। उसको थेल्स थियरम भी बोलते हैं। उसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर, फंडामेंटल थियरम, या तो उसको प्रोपोर्शनलिटी थियरम भी बोलते हैं। ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे, तुरंत साइड में लिखेंगे Q1 इन ट्राइंगल ABC, D is the midpoint of AB, D belongs to AB, E belongs to AC, E belongs to AC, D parallel to BC, D parallel to BC, to prove यहाँ पे हम लिखेंगे M and N are the foot perpendicular। यहाँ से हम फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन M, यहाँ से हम N ड्रॉ करेंगे। उसको सपोर्टिंग रोल के लिए हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, इस हिसाब से ज्वाइंट करेंगे कि हमको ट्राइंगल मिले। टू प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करने का है। ये प्रूव करने के लिए इसको हम फंडामेंटल थियरम भी बोलते हैं, थेल्स थियरम भी बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं और प्रोपोर्शनलिटी, इन सब का आंसर एक ही होता है। तो ये प्रूव करने के लिए हमको एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फार्मूला हमने 9th स्टैंडर्ड में ट्राइंगल लेसन में किया था, वो है प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, D belongs to AB, E belongs to AC, area of triangle is equal to half into base into altitude। यहाँ पे हम लिखेंगे EM and DN are altitude। अब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके
विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर हमको ये आंसर लाना है। पॉइंट नंबर 1 इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। ए डी मान देने का बेस, एल्टीट्यूड ई एम मान लेने का। पॉइंट नंबर 1 इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस बी डी मान लेने का, एल्टीट्यूड सेम ले लेने का। पॉइंट नंबर 2 अब इन दोनों पॉइंट को हम एक साथ डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी मल्टीप्लाई बाई ई एम अपॉन 1/2 इंटू बी डी मल्टीप्लाई बाई ई एम कट 1/2 कट, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये पॉइंट नंबर 1 एंड 2 के हिसाब से हमको पॉइंट नंबर ए मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे वापस। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, वापस नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब हम दूसरे साइड का लेंगे। हमारे पास दूसरा साइड ऐसा है, ये जो है ए डी ई, उसका इस्तेमाल करके हम आंसर लाने वाले हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन। ये आया ट्राइंगल ए डी ई ए का। पॉइंट नंबर 3 ट्राइंगल सी डी ई, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ इंटू बेस हम लोग लेंगे ई सी इंटू एल्टीट्यूड डी एन, सेम का सेम एल्टीट्यूड लेंगे। पॉइंट नंबर 4 फ्रॉम 3 एंड 4, मतलब ये 3 और 4 को हम डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन कट 1/2 कट, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बचा पॉइंट नंबर बी। फ्रॉम ए एंड बी, when two triangles area are similar according to the similarity theorem, we can say AD upon PD is equal to AE upon EC is proved.